Good morning. This is the third part of chapter number 1, A Working Boy at 8. Now I am going to continue the story. As the difficulties of the war started affecting us, Samsuddin came up with a proposal that excited and delighted me tremendously. One fallout of the condition was that the trail stop at Rameswaram station had been done away with. What would happen to our papers then? How were they to be collected and then distributed to all the people of the town who were looking forward to their daily dose of news? So, in this paragraph, APJ Abdul Kalam tells us that the family was facing economical problem and the difficulties of the war started affecting the family of APJ Abdul Kalam. At that time, Samsuddin came up with a proposal, and that proposal delighted, excited APJ Abdul Kalam. But the main problem was that the trade did not stop at Rameswaram stations. So the problem was that how were the newspaper to be collected and then delivered in the town of Rameswaram. This was the biggest challenge. This was the biggest problem for Samsuddin. तो कहता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो इसका प्रभाव सारे लोगों के ऊपर पड़ने लगा और जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनकी फैमिली के भी ऊपर पड़ा और उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो गड़बड़ पहले से ही थी. तो उसी समय शमसुद्दीन जो कि एपीजे अब्दुल कलाम का कजिन है एक प्रस्ताव लेकर आता है. एंड आफ्टर hearing the proposal, APJ Abdul Kalam became very happy. और APJ अब्दुल कलाम जैसे इस प्रपोजल को सुनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं. लेकिन शमसुद्दीन के साथ प्रॉब्लम यह थी कि जो शमसुद्दीन था ही वॉज द ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर एजेंसी. वह न्यूज़पेपर एजेंसी का ओनर था और उसका न्यूज़पेपर ट्रेन के द्वारा रामेश्वरम स्टेशन पे पहुंचा दिया जाता था. लेकिन अब जो ट्रेन है वो रामेश्वरम स्टेशन पे रुकना बंद हो गई. तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि न्यूज़पेपर अब कैसे कलेक्ट किया जाएगा और कैसे टाउन में डिलीवर किया जाएगा. दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. Samsuddin find out a way the paper should be kept ready in large bundle as the train checked down. Now I am going to explain this paragraph. But Samsuddin, he was very wise person. He found out the solution of this problem. लेकिन शमसुद्दीन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था. उसने क्या किया, इस समस्या का हल खोज लिया. How did he find out the solution of this problem? The paper should be kept ready in large bundle, and as train passed through the Rameswaram Dhanushkodi track, the newspaper would be thrown out. The newspaper would be flung out from the moving train onto the platform, and it was the duty of APJ Abdul Kalam to catch the newspaper bundles from the moving train. Means the newspaper bundles were being thrown out from the moving train, and it was the duty of APJ Abdul Kalam to catch the newspaper bundle from the moving train, and after that he had to deliver in the town. अब जब ट्रेन रुकना बंद हो गई तो शमसुद्दीन ने एक उपाय खोजा और जो न्यूज़पेपर थे वो बड़े बड़े बंडलों में बांधना शुरू किए गए. और जैसे ही ट्रेन रामेश्वरम और धनुषकोडी के रास्ते में पहुंचती थी तो वहाँ पे जो न्यूज़पेपर डिलीवर करने वाला था उस ट्रेन में वो क्या करता था, उस न्यूज़पेपर के बंडल को बनाकर चलती ट्रेन से रामेश्वर और धनुषकोडी के मार्ग पर रास्ते पर स्टेशन पे वो फेंक दिया करता था. और वहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, इट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैच द न्यूज़पेपर बंडल फ्रॉम द मूविंग ट्रेन. और वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम खड़े रहते थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो चलती हुई ट्रेन से जो न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जा रहे हैं उसको पकड़कर एक जगह कलेक्ट करना, एंड आफ्टर दैट ही हैड टू डिलीवर द न्यूज़पेपर इन द टाउन. और उसके बाद उस टाउन में उस न्यूज़पेपर को डिलीवर करना.
My enthusiasm knew no bounds. I was only 8, but I was going to contribute in a meaningful way to the household income. Now, in this paragraph, APJ Abdul Kalam tells us that when he started working to help his family, at that time he was only 8 years old, but he was helping his family in economical way, and he was very happy. He was very happy because he was supporting his family, and he agreed with the proposal of शमसुद्दीन. तो इस पैराग्राफ में बता रहा है कि जब उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने न्यूज़पेपर का जब शमसुद्दीन ने उनको काम दिया कि भाई आपका काम यही है, स्टेशन पे खड़ा रहना है और जो न्यूज़पेपर बंडल फेंके जा रहे हैं उसको कैश करके आपको टाउन में डिलीवर करना है. तो एपीजे अब्दुल कलाम सहमत हो गए. क्यों? क्योंकि उस समय उनको पैसे की ज़रूरत थी और सहमत भी हो गए, और उनको लगा कि मैं इस तरीके से अपनी फैमिली की मदद भी कर रहा हूँ. However, my new job had to be fitted into my regular routine. My study and school had to continue as before, and the delivery business had to accommodate amidst all these activities. Among my siblings and my cousin, I had shown an aptitude. Now, I am going to explain this paragraph. APJ Abdul Kalam, he had to also continue his study. अब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना था. एंड एपीजे अब्दुल कलाम he had deep interest in mathematics, means his favorite subject was math. जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको जो मैथमेटिक्स था उसमें बहुत ही विशेष रुचि थी. वी कैन से दैट हिज फेवरेट सब्जेक्ट वाज मैथ्स. उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ. एंड हिज फादर हैड अरेंज मैथमेटिक्स ट्यूशन फॉर हिम, मैथमेटिक्स कोचिंग फॉर हिम. और जो एपीजे अब्दुल कलाम के पेरेंट्स थे उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक मैथ की ट्यूशन कर सकते हैं कोचिंग भी कर दी थी. बट देयर वाज वन कंडीशन फ्रॉम मैथमेटिक्स टीचर साइड. लेकिन जो एपीजे अब्दुल कलाम के मैथ्स के जो टीचर थे उनकी तरफ से एक कंडीशन थी, एक शर्त थी. And what was the condition? That APJ Abdul Kalam, he had to reach at his house at dawn. Means what is the meaning of dawn? The timing of 4 o'clock early in the morning. That is known as ब्रह्म मुहूर्त. तो उसके मैथ के टीचर ने कहा कि मैं आपको एक ही शर्त पे मैथ पढ़ाऊंगा. वो शर्त क्या कि आपको सुबह 4 बजे मेरे यहाँ पहुँच जाना, मीन्स ब्रह्म मुहूर्त में. And what was the duration of his math class? 1 year. The duration of his mathematics tuition was 1 year. मतलब उन्होंने 1 साल वो उनका था. And APJ Abdul Kalam started his life while it was still dark outside. APJ Abdul Kalam, he started his life while it was dark outside. It means he had to get up early in the morning. अब कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन की शुरुआत तब करते थे जब बाहर अंधेरा रहता. इसका मतलब उनको सुबह बहुत ही जल्दी उठना रहता था, क्योंकि उनको 4 बजे से मैथ की क्लास अटेंड करनी थी, अपने मैथ के सर से कोचिंग पढ़ना था. तो 4 बजे उनको मैथ क्लास अटेंड करनी थी, मतलब उनको 4 बजे के पहले ही उठ जाना होता था और उस समय अंधेरा रहता था. एंड हर मदर कोऑपरेटेड हिम वेरी मच. और एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे कि उनकी जो माँ थी उन्होंने उनका क्या किया, बहुत ही कोऑपरेट किया. क्योंकि कोई भी यदि बच्चा आगे जाता है तो उसके पीछे उसके माता और पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है. सो एपीजे अब्दुल कलाम्स मदर हरसेल्फ वुड हैव राइजन बिफोर हिम एंड गॉट हिज बाथ रेडी. जो एपीजे अब्दुल कलाम की माँ थी वो एपीजे अब्दुल कलाम से पहले उठ जाती थी और उसके जो नहाने की व्यवस्था थी उसको कर देती थी. मतलब शी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर एपीजे अब्दुल कलाम. जो एपीजे अब्दुल कलाम की माँ थी उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या किया, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया.
आफ्टर बाथिंग एपीजे अब्दुल कलाम यूज टू गो टू अटेंड हिज मैथ क्लास। तो नहाने के बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम मैथ क्लास पढ़ने चले जाते थे। एंड व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ हिज मैथ्स क्लास, मैथ्स कोचिंग? द टाइमिंग वाज 4 o'clock to 5 o'clock। मतलब जो उनका मैथ क्लास पढ़ने का जो टाइमिंग था वो 4 to 5 o'clock था, मतलब 1 hour था। एंड आफ्टर अटेंडिंग द कोचिंग ऑफ मैथ, after attending the tuition of math, he had to go to the Arabic school where he used to learn, where he used to study the Quran Sharif. After attending the class of maths, or after attending the tuition of maths, APJ Abdul Kalam used to go to the Arabic school where he used to learn, where he used to study the Quran Sharif। तो 4 से 5 बजे तक जब वो मैथ की क्लास पढ़ लेते थे तो उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को 5 बजे से अपने जो मुसलमानों की जैसे मस्जिद होती है वो वहाँ पे जाया करते थे, या अरबी स्कूल में जाया करते थे जहाँ पे उनको कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था। एंड आफ्टर अटेंडिंग द क्लास ऑफ कुरान शरीफ, एपीजे अब्दुल कलाम would sprint away to the railway station। APJ Abdul Kalam would run away to the railway station। और जैसे ही उनकी कुरान शरीफ की क्लास 5 बजे शुरू होती थी और जब खत्म हो जाती थी उसके बाद वो दौड़ते हुए कहाँ जाते थे? रेलवे स्टेशन। बिकॉज व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी? हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज to catch the newspaper bundle from the moving train, and after that he had to deliver in the town of रामेश्वरम। वो कुरान शरीफ की क्लास ओवर होने के बाद दौड़ते हुए क्यों स्टेशन जाया करते थे? क्योंकि वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो न्यूज़पेपर के बंडल चलती ट्रेन से फेंके जा रहे हैं उसको कैच करके टाउन में डिलीवर कर दें। So he would pick up the bundles and divide them into batches, and after that he had to deliver the newspaper। And some people would tell APJ Abdul Kalam to hurry back home so he would not be late for school। means APJ Abdul Kalam, he used to do the job of delivering the newspaper very fast because he had to also go to his school। So he used to finish the work of delivering the newspaper till 8 o'clock। मीन्स जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो 8 o'clock तक क्या करते थे? वो न्यूज़पेपर का जो डिलीवरी था उसको कर देते थे। एंड एट 8 o'clock he would used to run towards his home where his mother was waiting with breakfast for him। और जैसे 8 o'clock बजता था वो न्यूज़पेपर डिलीवरी कर देते थे, उसके बाद वो दौड़ते हुए घर पे जाते थे जहाँ पे उनकी माँ ब्रेकफास्ट के साथ उनका इंतज़ार किया करती थी। एंड दैट टाइम ही बिकेम वेरी हंग्री। और उस समय तक एपीजे अब्दुल कलाम बहुत भूखे हो जाते थे। आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द स्कूल। और ब्रेकफास्ट लेने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल चले जाते थे। इट मीन्स हिज शेड्यूल वाज टू बिजी। उनका जो शेड्यूल था बहुत ही बिजी था। सोचिए, एकदम सुबह उठते थे और 4 बजे से मैथ की ट्यूशन पढ़ते थे, 4 से 5, फिर 5 बजे से वो अपनी अरबी स्कूल में जाते थे जहाँ पे वो कुरान शरीफ पढ़ते थे, और फिर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद वो दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन पे जाते थे जहाँ पे वो न्यूज़पेपर डिलीवर किया करते थे। और न्यूज़पेपर डिलीवर कब तक किया करते हैं? 8 o'clock तक। मतलब 4 बजे से पढ़ रहे, 4 बजे से लेकर 8 o'clock तक 4 बजे मैथ की क्लास पढ़े, फिर 5 से वो अपना कुरान शरीफ पढ़ते थे। उसको पढ़ने के बाद वो न्यूज़पेपर डिलीवर किया करते थे और 8 o'clock तक न्यूज़पेपर डिलीवर का काम फिनिश कर दिया करते। फिर उसके बाद दौड़ते हुए घर जाते थे और ब्रेकफास्ट करते थे और फिर स्कूल जाया
करते थे। सो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।